Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Okay, so which chapter is going on? Chapter 7. Chapter 7. Chapter 7 is Glory of Trees. Okay. Kids, in our previous class, we already discussed about the importance of trees. Yes? About Chipko movement. Yes? Okay. So, anyone who will tell me how many people are sacrificed their life in Chipko movement? Ma'am, 360. Yes, 363. Yes, there are 363 people were sacrificed their life. Yes? Okay. And anyone? Prachi, sit down. Tell me the things which is given by trees to us. Tell me 4 things name only. Tell me 4 things which we get from trees. Trees से आपको क्या मिलता है बेटा? Is there importance of trees in your life? Trees की आपकी लाइफ में कुछ importance है? Yes or no? Yes. So what are the things which you get from the plants, trees? Trees से आपको क्या मिलता है? Louder बेटा. What's she saying? Shade. Okay, trees gives the shade and any other thing? Fruits, very good. Vegetables. Nandini, you tell me. Yes. Flower. Medicines. Yes, Ganit. Yes. Yes. Very good. So we get lots of things from trees. Yes. So we have to save the trees. Yes. So what should you do for save the trees? हाँ, आपको क्या करना है ट्रीज को सेव करने के लिए? Wait. Raise your hand only. Yes, Anuja. We should not cut our trees. Yes, we should not cut the trees. Any other effort? We should not cut our trees. We should give oxygen and medicine. Ma'am, can I help? Yes, Janvi. We should not cut trees and we should plant more and more trees. Very good. We should not cut the trees and we plant more and more trees. ज़्यादा से ज़्यादा trees को grow करना है and we should take care of them. और उनकी care भी करना है. Yes, these are the efforts. ये efforts है जो आपको trees के लिए करना है. Yes, sit down you all. Okay. So there are some questions. So what are the questions? First आपने discuss कर लिया था. Yes, second question is find out which tree has been declared as your state tree. Which is your state tree? First tell me about your national tree. What is your national tree? Yes, Manas? Banyan tree. Very good. Banyan is our national tree? Yes. Okay. Now tell me which is your state tree. What is the state tree of Rajasthan? You live in Rajasthan state? So tell me the name of your state tree. Nandini? Khejri tree. Khejri is our state tree. Khejri is the state tree of Rajasthan. Okay? Okay, next is ये भी आपने डिस्कस कर ही लिया है. What efforts are being made by people to save trees? ठीक है, ट्रीज को सेव करने के लिए लोगों को क्या क्या एफर्ट्स करने हैं? सिट डाउन मनस, नंदिनी. नेक्स्ट है ऑन विच ओकेजन देयर इज ट्रेडिशन ऑफ प्लांटिंग अराउंड योर एरिया. कौन से ओकेजन पे आप लोग
ट्रीज को ग्रो करते हो, ट्रीज प्लांटिंग करते हो? कोई आपके नियर में या आपकी ट्रेडिशन में कोई ऐसा है डे जब आप प्लांट्स को ग्रो करते हो, प्लांट करते हो प्लांट्स? तो देखो हम बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे जैसे हमारा घर में हमारी बर्थडे होती है, एनिवर्सरीज होती है, हम इन पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। हाँ, okay, you plant on your birthday, very good. So we should always plant a tree in our birthday. हमेशा अपने बर्थडे पे एक प्लांट तो ग्रो करिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 5th जून इज आवर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, है ना? इट इज अ डे टू अवेयर द पीपल फॉर इम्पोर्टेंसी, टू अवेयर देम व्हाट इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ ट्रीज प्लांट्स इन आवर लाइफ। प्लांट्स की, ट्रीज की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंसी है, तो उसके लिए लोगों में अवेयरनेस आपको लोगों को देनी होती है। तो उस दिन भी आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, है ना? सो वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5th June. Good. Understood? Okay. So let's we continue the chapter. Let us we start. Okay. Forest wealth conservation. Forest wealth कंजर्वेशन, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, उसको आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो, कैसे संरक्षित रख सकते हो, ठीक है। ये कब का है? द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो एंशिएंट ट्रेडिशन था, उस तब एंशिएंट टाइम पे, पुराने टाइम पे लोग कैसे जो फॉरेस्ट थे, ट्रीज थे, उनको कंजर्व करके रखते थे, ठीक है। ओके। After visiting the fair, next day Bhavya and Sanjay discussed about the fair in the classroom. तो बेटा भव्य और संजय ये दोनों कहाँ गए थे? फेयर में गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब एक दिन चले गए, नेक्स्ट डे लोग डिस्कस करने क्लास में कि वो जब मेले में गए थे तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भव्य क्या बोल रहा है? I felt excited after visiting the fair of our folk deity. Folk deity means लोक देवता, ठीक है। कोई लोक देवता का फेयर था, ठीक है, तो वो देखने गए थे उसको। I saw a big pasture land and oran near the fair compound. तो जहां पर फेयर लग रहा था, ठीक है ना, वहां पर मैंने एक ओरन देखा, पास्चर लैंड, ठीक है। ओरन इज अ प्लेस, ओरन एक ऐसा प्लेस होता है, ठीक है, जो उस एरिया में ट्रीज को सेव करके रखते हैं, और वो जो एरिया होता है वो एक डिटी के की जो मूर्ति होती है वो रख दी जाती है, और उस एरिया को सेक्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो एरिया कितना है? इस एरिया में जितने भी ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होंगे? ना आप इनको हंट कर सकते हो, ना आप इनको मार सकते हो, ना कोई ट्रीज कट कर सकते हो। मतलब एक तरीके से ये सेव हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक उस एरिया के फोक डिटी को, उस एरिया को दे दिया गया है उस लोक देवता के लिए, वो कि भाई भगवान का एरिया है, गॉड का एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरह के एरिया का ट्रीज या फिर कोई एनिमल, इन सबको ना तो कोई एनिमल को किल करेगा, ना ही उस एरिया में आप कोई प्लांट को कट कर सकते हो। तो एक तरीके से ट्रीज का कंजर्व हो गया, ट्रीज का फॉरेस्ट आपका कंजर्व हो गया ना, तो उस एरिया को बोलते हैं ओरन, ठीक है। पास्चर लैंड क्या होते हैं? जहां पर ऑलरेडी ही प्लांट्स जो है वो अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक तरीके से लैंड होता है, इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं, नेचर इनकी केयर करता है, ये अपने आप ही ग्रो होते हैं यहाँ पे। तो ओरन जो होता है ये एक डिटी को दे दिया जाता है, ठीक है, किसला? एक देवता। डिटी मीन्स देवता, लोक देवता होता है, ठीक है। तो इनको इस एरिया में जितने भी जो ट्रीज होते हैं, मतलब ओरन वो प्लेस होता है उस एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं या उस एरिया में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, आप उनको ना तो कट कर सकते, प्लांट्स को आप कट नहीं कर सकते, और ना ही किसी एनिमल को किल कर सकते हो। वो प्लेस होता है ओरन। समझ में आया? ठीक है। तो उसने कहा कि इस जहाँ पे फेयर लग रहा था उसके पास से मैंने ओरन और पास्चर लैंड देखा, ठीक है। संजय, व्हाट इज पास्चर लैंड एंड ओरन? पास्चर लैंड और ओरन होता क्या है, ठीक है। तो ये किसने क्वेश्चन किया बेटा? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? संजय। So what is the reply of Bhavya? I have seen
seen many trees. I have seen many trees, bushes and uncultivated land. From the trees and bushes here, it seems that people do not use excess of cut them here. तो मतलब इस एरिया में जो भी ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो भी बुशेस होती है, इन सबको लोग कट नहीं करते, ठीक है, एक्स नहीं लगाते हैं, उन कुल्हाड़ी नहीं चलाते, ट्रीज को कट नहीं करते, ठीक है, तो वो प्लेस होता है, ठीक है। सो संजय ने क्या पूछा उसको, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, है ना, वो उसके बराबर के थे ना, आप सब लोग सेम एज के हो, लेकिन किसी को इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, किसी को कम है, तो उसने भी पूछ लिया हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। भव्या, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, कि हमारा जो विलेज है वहां पे इस टाइप के लैंड को हमारे यहाँ के लोग कट नहीं करते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर, चलो उसके बारे में किससे जानते हैं, टीचर से जानते हैं, उनकी क्लासरूम में बैठ के डिस्कस कर रहे थे ना। ओके संजय, सर प्लीज टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरन, तो और डिटेल में जानना चाहते थे, तो उन्होंने किससे पूछा, अपने टीचर से पूछा। टीचर, डियर स्टूडेंट, और स्टेट हैज एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेशन द फॉरेस्ट, तो ओल्ड ट्रेडिशनल है ये हमारा, ठीक है, दिस इज द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द ट्री। ओरन क्या है, एक तरीके से पुराना तरीका है किसको कंजर्व करने का, ट्रीज को सेव करने का, ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक लैंड को, है ना, कंजर्व कर देते हैं अपने विलेज के, जो उनके विलेज के आसपास आता है। ओके, इन द नेम ऑफ अ फोक डिटी, जो अपने विलेज के या अपने जो लोग के देवता होते हैं उनके नाम पर उस लैंड को कंजर्व कर देते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, संत भी हो सकते हैं, कोई ग्रेट मैन होता है, उसके नेम से वो उस लैंड को क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं, कि भाई अब ये जो एरिया है ये इन डिटी का है या इस संत का है या इस मैन का है, ये ग्रेट मैन थे हमारे विलेज के, तो हमने ये एरिया इनके नाम से रख दिया है। अब इस एरिया में जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज है, इनको कोई कट नहीं करेगा। इस एरिया में जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, वेट बिट अ बिट, ओके, so this place is known as Oran, so place or land which is where people conserve the land around their villages in the name of folk deity, sant and great man, किसी भी great man या संत के नाम पे उस land को क्या करते थे, कंजर्व कर देते थे, ठीक है, उस place को क्या बोलते हैं, Oran, so this place is known as Oran. Clear to you all what is Oran? Okay, संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड, क्या लोग उस प्लेस से वुड कट नहीं कर सकते, लकड़ी कट नहीं कर सकते। टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड एज दीज पीपल्स आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, तो लोग जो है वो अपने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए क्या है, अवेयर है। द पास्चर लैंड एंड ओरन आल्सो रिमेन प्रिजर्व, तो ये जो भी लैंड्स होते हैं इनको प्रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर द विलेजर्स, संजय, सर द विलेजर आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, विलेजर्स जो है वो गवर्नमेंट लॉ के रिगार्डिंग बात नहीं कर सकते इस टाइप के लैंड के लिए। सर द विलेजर्स आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, लोग इसके बारे में गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं। तो बेटा कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे एरियाज होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है, कंजर्व कर रखा है, उनको सुरक्षित करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंचुरीज या नेशनल पार्क, विच इज, ठीक है, हु टेक केयर ऑफ देम, गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट, टीचर, यस संजय यू आर राइट, संजय तुम सही हो, यस
Feeling the need of making people aware about the importance of environment protection, the Rajasthan government has formed laws and conserved such lands. तो लोगों को इस तरीके से अवेयर करने के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, ट्रीज सेव करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ जो ऐसे लॉज हैं वो फॉर्म किए, मीन्स बनाए हैं, ठीक है, और ऐसे लैंड्स को कंजर्व किया है, ठीक है। संजय Sir, due to respect of local people for environment conservation and due to formation of laws by the government, Oran, Gochar and pasture land have been protected. This way, forests of Rajasthan are being conserved through various traditions and laws. So, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है ना, ट्रीज को कंजर्व करने के लिए, ट्रीज को सेव करने के लिए कर रही है ना। So these are the places, so they making the law. गवर्नमेंट क्या बना रही है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन द लॉज, गवर्नमेंट लॉ बनाती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया दिस इज अ सेंचुरी, दिस इज नेशनल पार्क, तो वहां जाके आप ना तो किसी एनिमल को हंट कर सकते हो, ना ही वहां किसी चीज को कट कर सकते हो, ठीक है, वो लॉ है वहां के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। जब भी आप किसी सेंचुरी में जाते हो घूमने, कभी सफारी करने गए हो, तो आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली वहां पे घूमते हैं, देखा है कभी? हाँ, तो सरिस्का नेशनल पार्क है, बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है, अगर आप राजस्थान में देखोगे, केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर में, ठीक है। तो सारे बर्ड्स, सारे एनिमल्स सब फ्रीली रहते हैं, तो वहां आप किसी को किल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, और these areas is protected by the government. Clear? तो ओल्डन टाइम के कैसे थे? ओल्डन टाइम में क्या बनाए जाते थे? ओरन्स, है ना, ताकि ट्रीज को कोई कट नहीं करे, क्योंकि जो ओल्डन टाइम्स के जो लोग थे वो किसको ज्यादा मानते थे? गॉड को, भगवान को। अभी भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, ठीक है, बट वो लोग बहुत ज्यादा, तो उस ऐसे लोगों से ट्रीज को सेव कराने का ये आइडिया अच्छा था, है ना। और आज आपके ऊपर जो गवर्नमेंट का जो लॉ है, हम गवर्नमेंट की लॉ फॉलो करते हैं, तो वो भी अच्छा है ना। तो इस तरीके से आप ट्रीज को कट नहीं कर सकते, तो वो एरिया सेव है। साथ ही आपको भी एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है, आपको क्या एफर्ट्स लगाने हैं? हाँ, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट अ ट्री इन ऑन योर बर्थडे, ओके। सो आपका जितने भी बर्थडे आ रहा है, एवरी ईयर यू हैव अ प्लांट, ओके। Next, on your birthday or new year or any particular day which is important for you, plant a sapling. What is sapling? Baby plant. Yes. In the name of your ancestor and talk resolution to take complete care of it. तो प्लांट्स लगा के उसकी केयर भी करनी है, उसको रेगुलर पानी देना है, ठीक है। अपने नियर बाय में आप प्लांट कर सकते हैं ट्रीज को, है ना। सैपलिंग लगाओगे, रेगुलर आप उसको वाटर दोगे, उसकी केयर करोगे, तो वो क्या बनेगा? बिग ट्री बनेगा, है ना। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज। तो इस तरीके से आप ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। यस, अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन विच वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके बेटा। Kids, look at here. In the following table, park and sanctuary of Rajasthan and the districts where they are located are given. तो यहाँ पर आपको कुछ सेंचुरीज, पार्क के नेम और उनके डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ओके। अंडरस्टैंड दीज प्लेसेज अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स इन डिटेल। तो अब उनको हम डिटेल में देखते हैं। सो रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर, सवाई, ग्रेट। नेक्स्ट, केवलादेव नेशनल पार्क और घना बर्ड सेंचुरी, इट इज सिचुएटेड इन भरतपुर। डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर, बाड़मेर, ओके। एंड सरिस्का नेशनल पार्क, Alwar. So these are the
parks and sanctuaries of Rajasthan. Okay, clear? So there is a map of Rajasthan. This is the map of Rajasthan. So you know na directions? You know about the direction? Which direction is on the top? Which direction is on the top? North and south, east. Okay. So where is Bharatpur? There is Bharatpur. East. Okay. Alwar. Where is Alwar? Alwar. Okay. And Jaisalmer. West. Jaisalmer. Badmer. This is Badmer. Okay. And next is एक कौन सा था हमारा? सवाई माधोपुर. So there is साउथ ईस्ट में है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है. ओके, सो दीज आर द प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग पार्क्स एंड सेंचुरीज आर सिचुएटेड. ओके, नेक्स्ट इज फूड चेन. नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड चेन? What is food chain? You already know about the food chain. What is food chain? Food chain होती क्या है? Yes? Who gives food to animals is called food chain. No, there is a chain. हाँ, when plants and animals are interdependent to each other, जब एक दूसरे पे dependent है, वो food chain है ना बेटा? Yes. Soumya said to her mother, I water the plants at home every day. मैं अपने plants को रोज पानी देती हूँ. I feed the birds. Then tell me mother, who gives food to the animals in forest? तो यहाँ तो मैं ही plants को water देती हूँ, birds को भी feed करवाती हूँ, लेकिन forest में इन plants animals को या plants को कौन water और animals को कौन food देता है? Who water the plants? और plants को पानी कौन देता है ना? ये क्वेश्चन पूछा है किसने? Who asked this question? Soumya asked it. Okay, Soumya asked to her mother. Okay, वो अपनी मम्मा से पूछ रही है. क्या पूछ रही है? कि who gave food to the animal in forest and who water the plants? यहाँ तो मैं दे रही हूँ, लेकिन forest में कौन देता है? Okay, mother said. What mother said? Herbivorous animals get their food from trees, plants. जो herbivorous होते हैं वो plants से क्या लेते हैं? अपना food लेते हैं. And the animals that eat meat get their food from other or smaller animals. Other animals से लेते हैं. ठीक है? So आपको मैंने बताया था what is food chain. Food chain is a when plants are eaten by herbivores and herbivores are eaten by carnivores. This chain is called food chain. ये chain क्या होती है? Food chain होती है. ठीक है? So always food chain is begun from plants. Food chain हमेशा कहाँ से start होती है बेटा? Plants से, because plants are producer. Plants are producer. Plants कौन होते हैं? Producer होते हैं. Why we call plants producers? Because plants make their food. Okay, they are not depending to other animals or other plants. Plants किसी पे depend नहीं है. They make their own food. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं. Okay, with the help of what? Yes, air, water and sunlight. Yes, तो ये conditions होती है जो plants को grow करने में help करती है और plants को food make करने में help करती है. So plants are producers because they make their food. They prepare their own food. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब these are the producers. Who eat it? Yeah, this is carrot. We get carrot from plants. Yes, so carrot is eaten by rabbit. Rabbit is a herbivorous. Rabbit is a
रैबिट हर्बीवोरस है ना, हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। रैबिट एक हर्बीवोरस है बिकॉज हर्बीवोरस कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि रैबिट एंड एलिफेंट, जिराफ, हॉर्स, these are such type of animals. Yes. Next, a rabbit is eaten by fox. Fox is a carnivorous and lion is also a carnivorous. Okay. And omnivorous are the animals who eat both plants and flesh of other animals. Okay. So omnivorous के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, ओमनीवोरस के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछते हैं तो क्रो, CROW क्रो, ओके, बेयर, ओके, वी ह्यूमंस, हम ह्यूमन भी क्या है? ओमनीवोरस है। एंड हु आर ओमनीवोरस? हु आर ओमनीवोरस? हु ईट plants and flesh of other animals, दोनों ही खाते हैं, okay, they eat both, okay. And carnivorous eat only flesh, carnivorous eat only flesh of other animals and herbivorous eat only plants. So plants are eaten by herbivores are eaten by carnivorous. This is a food chain. ये क्या है? एक food chain है, okay. So सब लोग directly और indirectly किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? प्लांट्स पे। रैबिट डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन फॉक्स और लायन ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि इनकी एनर्जी, प्लांट्स की एनर्जी रैबिट में जा रही, रैबिट से एनर्जी फिर फॉक्स, फिर लायन, इन सब में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ओके. So there are exercise, okay, which you do yourself, okay, at home, okay. So this is also a food chain. This is also a food chain. Is it visible to you all? Okay. So these are producer. What is there? Grass. Okay. Grass make their food with the help of sunlight, water and air. Okay. So who eat grass? Primary consumer कौन है बेटा? जो सबसे पहले लेगा, first. It is a primary consumer. It's grasshopper. Okay. Secondary consumer is frog. Okay. And frog is eaten by snake. It is a tertiary consumer. Next is final consumer is eagle. Snake is eaten by eagle. Okay. And next ये फिर क्या हो जाते हैं? Decompose हो जाते हैं. जब ये die हो जाते हैं तो ये नीचे आ जाता है, सॉइल के अंदर ही क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं. तो डीकम्पोज होने के लिए कौन हेल्प करता है? जो भी सॉइल के अंदर फंगाई हो गए, ठीक है, फंजाई हो गए, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खा जाते हैं. इंसेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इनके डेड एनिमल्स को खा जाता है, ठीक है. तो ऐसे फिर से डीकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर से प्लांट ग्रो होगा. ओके. तो ये साइकिल चलती रहती है. ओके. सॉरी, गिव मी बेटा. ओके, क्लियर? ओके. So I think our chapter is completed. The feeding relationship among different living things and plants and trees is called food chain. So this is the definition. What is the definition of food chain? The feeding relationship. Feeding relationship among different living things and plants and trees. This is called food chain. Okay. So there is a, do you know?
Food chain were first introduced by African Arab scientists. African Arab scientists थे philosopher A.L. Janiz in 19th century. ठीक है, 19th century में इन्होंने दी थी. ठीक है, and were later popularized in a book by Charles Elton published in 1920. Okay, this is book on food chain. Okay, clear? So you have to recall this chapter, okay, and read the chapter at your home. Okay, I will ask the question in my next class. Okay, clear? Goodbye beta, goodbye and take care.